thought it appropriate to start off this particular web series with a talk on mental health issues. So, on behalf of IITT, all my colleagues and staff and students, I welcome Ms. Snigdha Mishra, who's a renowned psychoanalyst, I would say, in the field of mental health issues. So, she'll be delivering today on that aspect. So, now I invite the coordinator of the program, Dr. Charu, to say a few words and introduce Madam Snigdha and continue with the program. Over to you, Charu ma'am. Good afternoon, everybody. Today we are beginning with this new series, that is Knowledge Trips. And today we have started this series on a different note actually, because we have been hearing that there are a lot of problems, mental issues, mental health issues that we are facing. And in fact, at every stage of life, we have different stressors that we actually face. And we all want to be happy in our life. So we have invited a very renowned psychotherapist, life coach, Ms. Snigdha Mishra. She will be here and guiding us in how to develop the coping mindset to fight the different stressors that we go in our daily lives. Snigdha is an experienced psychotherapist. She's a mental wellness behavioral trainer and life coach. Snigdha is founder of Life Surfers. Life Surfers is a mental wellness organization with a focus on teaching and training people in emotional, behavioral, and associated skills to maintain happiness in life. Snigdha is also associated with various corporates, national and international level. To name a few, I can say Tata Consultancy, Barclays, Accenture, Wipro, and the list goes on. So she has been consulting the employees of these various corporates. She has been very actively organizing workshops and training programs with an emphasis on emotional behavior and life skills. Apart from this, Snigdha is also a very good cook. She is an avid reader. She is a music lover. So I can go on and on for Snigdha, but we should start with our session. So I welcome Snigdha on board. And I'm really happy, Snigdha, that you have joined us, given us time to take this important issue. And now the stage is all yours. Snigdha? Thank you so much for inviting me, and it's always a delight to speak with students because of the age that they are in, the transitions that they go through. And of course, as we go along, we'll talk about the passion project that I'm doing specifically for that age. And the Google form that I've shared with them is specifically for that, for something that I've co-founded called the Mind Life Project. And we are building a peer support counseling system for the colleges and universities in India, for all the students within the universities who have limited to no access to mental health care, or who may feel disappointed with the outsourcing of mental health assistance to professionals. So not that this project is in any way to say that psychologists are not enough. Of course they are, and everybody who needs assistance must go to a therapist, a psychologist, or a psychiatrist. But it's also important that students at this age find a system within their vicinity, within their campuses, to build coping, to have catharsis, to have a system where they can go and talk to, and they feel comfortable sharing their struggles with. So that's the entire idea with the Mind Life project. Now I need a little assistance from Rishabh in sharing the PPT. How do I do that, Rishabh? Yes, ma'am. In the bottom of the right bottom of the screen. Yes, it says present now. Yeah, it says present now. Just give me a sec.
Your entire screen. Okay, so this also works in the screen sharing thing. Just give me a sec, huh? I'll just open the PPT in the background so that. You can also present the window if you want. Acha, I can do that? Yes, ma'am. So when you click on present now, there will be 3 options. If the presentation is on the background, then you will see an option of window. Oh, okay. Just give me a sec, then I'll figure this out. So we're all struggling with doing everything online these days, and I'm one of those who keeps on struggling. So bear with me, please. No So I problem. see present now, and it just gives me one option, which is your entire screen. So nevertheless, I think I'm going to do that. Doesn't matter. Let me know if you're able to see the screen, okay? Yes, ma'am, we are able to see the screen. Okay, so are you able to now see the presentation? Yes. A little bit of it at least, yeah? Yes. Okay. Is this better? I mean, you can just play the presentation. No, the presentation is played, Yes. but Yes. do you see the slide here? Yes, ma'am, it's perfect. Yeah? Yeah, we can see it. We can All see right. it. Okay, all right. So thank you so much, everybody, for being here. And we are going to today talk about how we develop a coping mindset and how we look at our resilience and attitude. As we go along, of course, let me, Miss Yadav has obviously, sorry, Dr. Yadav has obviously introduced me. So I'm going to just skip this slide and I'm going to take you a little and talk to you a little about what Life Surfers does, so that if ever you feel the need of assistance, you know you can reach us, and there is a system that can assist you. So this is just a 1.5 minute video. This takes us to what we're really going to talk about today, which is, of course, we're going to talk about coping, what it really means, and what kind of coping styles we have. We're going to talk about resilience and how we can develop this by looking a little deeper into our values that help us develop resilience and coping. And we're going to, of course, learn this while doing an exercise together so that we actually learn how to focus on building resilience, how to focus on our lives and our lives' values, and how, no matter what kind of stressors we have, we're able to adapt to them and kind of, of course, gain strength from our experiences and focus and keep on focusing on what we want to achieve in life. So the first thing, of course, is what really coping is. And coping simply means to invest in one's own conscious effort to solve personal and interpersonal problems in order to try to master
मिनिमाइज और टॉलरेट स्ट्रेस एंड कॉन्फ्लिक्ट। इसका सीधा साधा मतलब ये होता है कि हम सबके लाइफ में इश्यूज और प्रॉब्लम्स बार बार आते हैं। ये लाजमी है कि हमारे लाइफ में प्रॉब्लम आए, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो हमेशा सुखी रहता है, जो हमेशा हर चीज से जूझता है और फिर भी मुस्कुराता रहता है। तो हम सब कहीं ना कहीं बचपन से लेकर आज तक ऐसी ऐसी कई घटनाओं से, लाइफ एक्सपीरियंस से गुजरे हैं जहां पे हमने अपने अंदर जो भी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं जिगरा, या स्ट्रेंथ बोलिए अंग्रेजी में, या कोपिंग स्किल्स बोलिए अगर टेक्निकल जाते हैं तो ये एक ऐसी चीज है जो हम सबके अंदर होती है, जो हम लाइफ में जूझ के एक्सपीरियंसेस के थ्रू सीखते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आज जो हम बात कर रहे हैं वो कोई बिल्कुल नहीं है, बट क्योंकि हम कई बार ये सोचना भूल जाते हैं कि, और ना ही हमें कोई सिखाता है कि कोपिंग को हम सीख सकते हैं। शायद आज तक जो हम करते आ रहे हैं वो किन्हीं लाइफ एक्सपीरियंस में शायद हमारे काम ना आए। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर आपने स्विमिंग पूल में स्विमिंग करना सीखा है, और अगर आपको बिल्कुल से हम किसी बहती नदी में डाल दें और बोले चलो इसमें स्विमिंग करो, तो शायद आदमी स्विमिंग ना कर पाए, क्योंकि उसने जो सीखा है, जो उसका स्किल लेवल है, वो एक समतल स्विमिंग पूल में स्विमिंग करने का है, तो वो शायद एक बहती नदी में स्विमिंग ना कर पाए। सिमिलरली जो हमारे लाइफ के उतार चढ़ाव होते हैं, उसमें जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे हैं, उससे हमने कुछ एक ऐसी स्ट्रैटेजीज बना ली जो आज तक हमारे लिए कारगर थी, and we were able to handle issues. But sometimes life throws at us challenges that we are just not prepared to face, and we feel shocked and surely don't know what to do, and we find ourselves not being able to handle them. So in those circumstances, the best idea is कि हम ये देखें कि ये जो हमारे स्किल होता है, या ये जो हमारे जूझने की क्षमता होती है, ये एक्चुअली स्किल होती है जो सीखी जा सकती है, जिसपे हम काम कर सकते हैं अगर हम थोड़ा सा कॉन्शियस हों, जहाँ पे ऑब्वियसली हम रिजिलियंस और एटीट्यूड और वैल्यूज और लर्निंग की बात करते हैं, तो वो हम सीखेंगे एज वी गो अलोंग। सो ऑफ कोर्स उससे सीखने से पहले हम एक लिस्ट देख लेते हैं ऑफ व्हाट कोपिंग स्टाइल्स एक्चुअली आर, क्योंकि ये एक ऐसी चीजें हैं जो हमने अपने लाइफ में हमेशा करी हैं, कम ज्यादा डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। ये सारे स्ट्रैटेजीज हम एज अ मिक्स यूज करते हैं। ऐसा कोई भी इंसान नहीं पैदा हुआ है जिसकी कोई कोपिंग स्टाइल ना हो या कोई कोपिंग मैकेनिज्म ना हो। अगर आप छोटे से बच्चे को देखें, आप एक टॉडलर को देखें, तो वो बिस्तर से जब जैसे जैसे एक बार लुढ़कता है, दूसरी बार लुढ़कता है, वो तीसरी बार कहता है चलो चद्दर पकड़ लूं, या वो जब लटकना शुरू करता है बिस्तर से, वो देखता है अपने पैर डिप करके कि ये जमीन से और बिस्तर के बीच में कितना डिफरेंस है। कई बार वो नीचे तकिया फेंक देता है और तकिया के ऊपर कूद के फिर वो बिस्तर से नीचे उतरता है। तो ये कोपिंग जो है हम अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस के अनुसार बिल्ड करते रहते हैं और सीखते रहते हैं, कई बार अंदरूनी और कई बार लोगों की मदद से। तो ये सारे स्टाइल्स हमारे अंदर ऑलरेडी हैं, बस हमको कैसे यूज करना है और कब यूज करना है वो हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सीखते हैं। So let's just have a look. So one of the things that we really do is releasing pent up emotions. जब हम इमोशनली बहुत ओवरवेलम हो जाते हैं तो हम उस इमोशंस को रिलीज करते हैं किन्हीं डिफरेंट तरीकों से। सबका तरीका अलग अलग होता है। हम डिस्ट्रैक्ट करते हैं अपने आप को उस प्रॉब्लम सिचुएशन से। और प्रॉब्लम सिचुएशन की जब हम बात करते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड ये एक फिजिकल सिचुएशन हो सकती है जो हमारे साथ घट रही हो, ये कोई मेमोरीज हो सकती हैं जो हमारे पहले के आ रही हो, ये कुछ लाइफ में चल रही अभी की घटनाओं के बारे में सोच हो हमारी, या फ्यूचर में क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा उसके बारे में सोच हो। Okay, so it could be thoughts, it could be current experience, it could be past memories, it could be actually आप किसी इस वक्त किसी प्रॉब्लम में किसी इंसान के साथ जूझ रहे हो, या किसी एक्चुअल फिजिकल प्रॉब्लम में हो। इट कुड बी एनी प्रॉब्लम सिचुएशन जो हम सिचुएशन की बात करते हैं। ऑफ कोर्स वी यूज जब हम किसी के प्रति हॉस्टाइल फील करते हैं, बहुत गुस्सा आता है, कुछ आता है, दैट
Meditating is one of the tools. Of course, mindfulness practices are tools. Using systematic relaxation procedures, जब आप कहते हैं कि जो योगा में कहते हैं कि शयन मुद्रा होती है कि आप लेट जाओ और जस्ट लेट योरसेल्फ बी, सिस्टमैटिक रिलैक्सेशन में हम अपने अपने मसल्स को रिलैक्स करना सीखते हैं. मे बी एट अ लेटर स्टेज व्हेनेवर वी हैव अनदर सेशन वी कैन एक्चुअली हम एक एक टेक्निक शायद सीख सकते हैं. डिस्क्लेमिंग का मतलब होता है डिसरिगार्ड कर देना कि अरे ये ठीक है, इट डजंट रियली मैटर दैट मच. एस्केप अवॉइडेंस, जब हम कोई चीज को अवॉइड करते हैं, हमें पता होता है कि अरे इस घटना में या इस इंसान के साथ जूझने से कोई मतलब नहीं है, लेट्स जस्ट अवॉइड इट. एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी और ब्लेम, जब हम देखते हैं कि इस सिचुएशन में चाहे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जो कुछ भी हो उसमें हमारा रोल क्या है और हम कैसे अपने आप को देखते हैं उस सिचुएशन में, तो क्या हम किसी चीज के प्रति या इस घटना के प्रति रिस्पॉन्सिबल हैं, या यदि कोई हमको ब्लेम कर रहा है तो वाकई हम उस ब्लेम के या उस ताड़ना के अधिकारी हैं, एंड वी एक्सेप्ट दैट ऑलराइट आई मेड अ मिस्टेक एंड व्हाटएवर एंड वी मूव ऑन फ्रॉम दैट. एक्सरसाइजिंग सेल्फ कंट्रोल मतलब कि ऑफ कोर्स आप डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट तरीके का सेल्फ कंट्रोल करते हैं और इमोशनल रिलीज करते हैं. तो अगर आप एक क्लास में बैठे हैं और आपके प्रोफेसर्स आपके साथ हैं, आपके स्टूडेंट्स आपके साथ हैं और आपको बहुत गुस्सा आया है किसी बात पे, तो आप उठ के चीखने चिल्लाने नहीं लगेंगे, आप मार धाड़ नहीं करने लगेंगे, आप जोर जोर से चीख चीख के रोने नहीं लगेंगे, तो आप सेल्फ कंट्रोल एक्सरसाइज करेंगे. वहीं शायद अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ अकेले हॉस्टल में या घर में हो या पेरेंट्स के साथ या भाई बहनों के साथ हो, तो आप किस तरह का सेल्फ कंट्रोल करेंगे वो आपको भी पता है कि पेरेंट्स से हम कभी कैसे बात करते हैं या दोस्तों के साथ कैसे बात करते हैं या अपने सिबलिंग्स के साथ कैसे बातें करते हैं और झगड़ा करते हैं. तो ये हमको सबको पता है कि हमारे कोपिंग मैकेनिज्म, हम उसको सोचते नहीं है एक्चुअली कि ये कोपिंग है, बट हम सबके पास वो क्षमता होती है कि हम चीजों को समझ सके और देख सके. जरूरत होती है थोड़ा सा कॉन्शियस एफर्ट डालने की, कॉन्शियसली सोचने की कि इस सिचुएशन में कौन सी स्ट्रैटेजी मेरे काम आएगी, ना कि इसके कि हम बिल्कुल भावनाओं में बह जाएं और हम उस सिचुएशन को अपने ऊपर हावी होने दें. एंड आई विल रिमाइंड यू अगेन कि जब हम सिचुएशन की बात करते हैं तो हम पास्ट मेमोरीज की बात करते हैं, हम करंट स्ट्रगल्स की बात करते हैं जो एक्चुअली में भी इस वक्त हमारे साथ हो रही हों या इस वक्त हम किसी के साथ जूझ रहे हों, और हम अपने थॉट्स से भी जूझ सकते हैं, हम फ्यूचर के बारे में वरी कर सकते हैं और एंग्शियस हो सकते हैं. बहुत सारी चीजें हैं. पॉजिटिव रीअप्रेजल हम उसको कहते हैं जब हम किसी सिचुएशन को देखते हैं और सडनली हमारा नेगेटिव रिएक्शन आता है, फिर हम थोड़ा सा पॉज करते हैं, हम देखते हैं नहीं 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 नहीं, ये शायद इतना गड़बड़ नहीं है जितना मैं सोच रहा था या सोच रही थी, चलो इसका नजरिया बदलते हैं और थोड़ा सा डिफरेंट पॉजिटिव या मोर कोपिंग मैकेनिज्म या कोपिंग स्ट्रैटेजी के हिसाब से देखते हैं. रीअप्रेजल का या अप्रेजल का मतलब होता है हम कैसे परसीव करते हैं. तो पॉजिटिव रीअप्रेजल का मतलब हुआ कि किसी भी सिचुएशन को परसेप्शन थोड़ा सा पॉजिटिव में चेंज कर देना अगर वो पहले नेगेटिव था. सोशल सपोर्ट, अपने दोस्तों से, फैमिली से, पियर्स से, टीचर से सोशल सपोर्ट मांगना. अगर हमारे अंदर खुद के अंदर वो क्षमता नहीं है कि हम इस प्रॉब्लम से जूझ पाए, तो बेहतर ये होगा कि हम किसी से सलाह मशवरा करें, किसी से मदद मांगे. वो प्रोफेशनल भी हो सकता है, वो हमारे सहकर्मी, सहपाठी, पियर्स हो सकते हैं, हमारे प्रोफेसर्स हो सकते हैं, घर वाले हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है. दूसरा, ये समझना, रिप्लेसिंग द स्ट्रेसर इन अ पॉजिटिव लाइफ, ये समझना कि लाइफ में इश्यूज और प्रॉब्लम्स तो आते हैं, लेकिन ये इशू पर्टिकुलरली क्या है ना. जब हम उसको कहते हैं पॉजिटिव लाइफ, तो इट डजंट मीन कि हम उसके बारे में अच्छा अच्छा सोचेंगे, कि ये तो सोचना मुश्किल है कि जब कुछ बुरा होता है लाइफ में तो हम बुरा ही सोचेंगे ना उसके बारे में. हमारा फ्रेंड से झगड़ा हो गया अगर, तो हम ये नहीं सोचेंगे कि चलो अच्छा हुआ झगड़ा हो गया, और स्पेशली जब हम ओवरवेल्म होते हैं उस प्रॉब्लम में, तो हम ये नहीं सोचते इसमें लर्निंग क्या है, मैं कैसे चेंज करूं क्या. तो इट्स ओके टू लेट योरसेल्फ एक्सपीरियंस व्हाट यू आर एक्सपीरियंसिंग, लेकिन उस स्ट्रेसर को जब हम पॉजिटिव लाइट में देखते हैं तो हम ये उसको एक एज एन एक्सपीरियंस देखते हैं. हम देखते हैं, हम उससे कैरिड अवे नहीं हो जाते, हम उसको अपनी लाइफ में हावी नहीं होने देते हैं. वी डोंट लेट इट वी डोंट बिकम डिसफंक्शनल.
Then accepting responsibility, as I already spoke about, that कई बार हमारा जो फोकस होता है वो प्रॉब्लम पे होता है या वो दूसरे लोगों पे होता है कि देखो उसने मेरे से ऐसे बोल दिया, या देखो वो मुझे एटीट्यूड दिखाते हैं, या वो मुझे समझते नहीं है, या मुझे कोई नहीं समझता, मेरी लाइफ देखो कितनी डिफरेंट है लोगों से, एंड मैं ऐसा हूँ, ऐसा ही रहूंगा या ऐसी ही रहूंगी, दिस इज हु आई एम. बट जब हम जूझ रहे होते हैं लाइफ से, या एंड जब मैं जूझना की बात करती हूँ ना, तो इट डजंट मीन कि कोई बहुत बड़ी आफत लाइफ में आ गई या समथिंग रियली बैड, समथिंग वेरी टेरिबल हैज हैपेंड. ऑफ कोर्स समथिंग वेरी बैड एंड टेरिबल कैन आल्सो हैपन, बट दीस आर एवरीडे चैलेंजेस आल्सो दैट वी फेस बिकॉज़ वी आर कोपिंग एवरी डे ना. सो जब हम अपने अंदर देखते हैं और हम देखते हैं कि इस सिचुएशन में मेरा क्या रोल रहा है या मेरा क्या रोल है, तब हम एक्सेप्ट करते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को. और जब हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करते हैं तो हमारा लोकस ऑफ कंट्रोल अपने अंदर आता है, एंड वी आर एक्चुअली एबल टू डू समथिंग अबाउट इट. क्योंकि हम दूसरे से एक्सपेक्ट करते रहेंगे तो एक्चुअली देयर इज नथिंग दैट इज गोइंग टू चेंज इन आवर लाइफ, बिकॉज ऑब्वियसली वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, एंड फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा, इरिटेशन बढ़ेगा. दिस ऑब्वियसली डजंट मीन कि हम दूसरों से एक्सपेक्ट ना करें, बिकॉज हमारे रिलेशनशिप्स हैं, हमारे सबके साथ इश्यूज हैं, एंड हम कोशिश करते हैं कि हम अच्छे से सबके साथ रहें, अच्छे से सबके साथ बर्ताव करें. तो और दूसरों से भी हमारी ये अपेक्षा रहती है. तो ऐसा नहीं है कि हम एक्सपेक्ट ना करें, लेकिन जब हम अपने अंदर लोकस ऑफ कंट्रोल लाते हैं तो हम हमारे अंदर अपने आप एक पावर आती है टू सी कि क्या चेंज हो सकता है और क्या चेंज नहीं हो सकता, और अगर कुछ चेंज हो सकता है तो वो कैसे चेंज होगा. सो ऑल ऑफ दिस इज व्हाट helps us develop a more functional coping style, and this is what helps us become more resilient. तो अगला स्लाइड वो गलती से मुझसे वापस हो गया. This brings us to the next aspect which I told you is resilience. जब हम अपने कोपिंग को पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे देखते हैं, अपनी लाइफ को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे देखते हैं, तो वी आर एबल टू डेवलप व्हाट इज नोन एज रेजिलियंस. ओके, जो आज के टाइम में चाहे आप कोविड देख ले, देयर इज सो मच ऑफ अनसर्टेनिटी अराउंड ऑल ऑफ अस. सो बिल्डिंग रेजिलियंस इज व्हाट हेल्प्स अस मूव फॉरवर्ड इन लाइफ. ऑफ कोर्स हम रेजिलियंस के बारे में डिटेल में बात करेंगे, बट व्हाट आई वांट टू आस्क ऑल ऑफ यू इज, अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन है? टिल नाउ यू हैव अ क्वेश्चन that you'd like to put up? If you want, how is the pace? You want me to slow down a little, or the pace is perfectly fine? Guys, if you respond, then I'll be able to do this better. At least two of you, please unmute yourself and let me know. Yes, somebody said something. Snigdha, they're saying it's okay. The pace is okay. All right. Okay. So this brings us to the next section, because I can't see the chat box. That's why I'm asking you guys. Okay. Okay. Yeah. So this brings us to the next section, which is what is resilience. And of course, resilience is something very, very simple. It's our ability to bounce back from adversities or problems and be functional to achieve our goals. So हमारे लाइफ में, सबके लाइफ में सेटबैक्स होते हैं, एंड छोटे बड़े कम ज्यादा सबके लाइफ में होते हैं. एंड कोई कंपैरिजन नहीं है कि मेरा सेटबैक बड़ा है, उसका सेटबैक छोटा है, या मेरे एक्सपीरियंस ज्यादा डिफिकल्ट है उसके एक्सपीरियंसेस से. सो इट्स नॉट अ कंपटीशन, इट्स नॉट अ कंपैरिजन, बट ये हमारे खुद के लिए है कि कोई भी एडवर्सिटी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, उससे हम कैसे उभरते हैं, कैसे बाउंस बैक करते हैं. और जब हम बाउंस बैक बोलते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एडवर्सिटी के बारे में हम सोचते नहीं है, या वो हमें कहीं ना कहीं अभी अफेक्ट नहीं करती. ऑफ कोर्स जब बुरी चीजें लाइफ में होती हैं तो हमको बुरा लगता है, बट कितना बुरा लगता है और कितनी देर तक बुरा लगता है,
और उस बुरा लगने के कारण हमारी लाइफ को हम कैसे जीते हैं, क्या हम फंक्शनल रहते हैं, अपनी लाइफ में जो करना चाहते हैं वो करते रहते हैं, कि हम इतना जूझ रहे होते हैं और इतना ओवरवेल्म्ड होते हैं कि हम अपने लाइफ का जो मकसद है, जो विजन है, जो पाथ है, वो खो देते हैं, अपने गोल्स को पूरा नहीं कर पाते, हमारी जो रेगुलर फंक्शनिंग है लाइफ में वो हम पूरी नहीं कर पाते। सो दैट इज व्हाट रेजिलियंस इज अबाउट, कि हम कितनी जल्दी, कितने इफेक्टिवली अपने सेटबैक से और या एडवर्सिटी से बाउंस बैक करें, और फंक्शनली जो हमारा पोटेंशियल है, लगभग उस पोटेंशियल के अराउंड, व्हेन आई से लगभग बिकॉज इट इज सब्जेक्टिव, ओके, इट इज नॉट ऑब्जेक्टिव कि ये स्केल है ऑफ पोटेंशियल और हमको इतना फंक्शनल रहना है। सो लगभग अपने पोटेंशियल के अनुसार हम अपने गोल्स को अचीव करते रहे। Let's just have a look at what resilience really means. So, जब हम resilience की बात करते हैं तो हम कुछ डोमेन्स देखते हैं, हम देखते हैं कि हमारा विजन क्या है, हम क्या करना चाहते हैं, हमारे गोल्स क्या है, और हमारे आज के हमारा जो पाथ है, जो हमारा काम है, बिहेवियर है, वो उनसे कैसे अलाइंड है या कॉन्ग्रुएंट है। दूसरा है कंपोजर, कि हम कैसे अपने इमोशंस को रेगुलेट करते हैं। व्हेन आई से रेगुलेट, इट मींस कि ऑफ कोर्स वी फील एवरीथिंग दैट वी फील, बट वी डोंट गेट सो ओवरवेल्म्ड कि हम अपना रास्ता भटक जाएं। ओके, वी आर एबल टू मैनेज आवरसेल्व्स इमोशनली आल्सो। इंटरप्रिटेशन बायस मतलब ये होता है कि हम कैसे चीजों को परसीव करते हैं, क्या हम अपने बिलीफ में इतने खो जाते हैं कि रियलिटी से परे हो जाते हैं, रियलिटी को समझ नहीं पाते हैं। okay? कितना हम काम और इन कंट्रोल रहते हैं। जब हम काम और इन कंट्रोल की बात करते हैं तो अक्सर लोग कहते हैं खुश रहो, अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, पॉजिटिव रहो। तो यहाँ हम रैशनल पॉजिटिविटी की बात करते हैं। जैसे पहले भी मैंने बोला था कि जब हमारे साथ बुरा होता है तो हमको बुरा ही लगेगा, तो जब सेटबैक है, प्रॉब्लम है, तो हमको बुरा लगेगा, हम उसके बारे में पॉजिटिव नहीं फील कर सकते। और ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा। इसलिए मैं रैशनल पॉजिटिविटी की बात करती हूँ, दैट यस, मुझे बुरा लग रहा है, बिल्कुल, क्योंकि ये बुरा हुआ है, और उसका रैशनल और उससे पॉजिटिविटी ड्रॉ करने का ये मतलब है कि ओके, मुझे बुरा लग रहा है, बट आई विल नॉट लेट दिस बी हावी ऑन माई सेल्फ, और मैं आगे बढ़ूंगी या बढ़ूंगा और अपने रास्ते पे जैसे चलना है वैसे चलूंगा, भले ही मुझे अभी बुरा लग रहा है। और दूसरी बात जो रैशनल पॉजिटिविटी के साथ होती है वो ये होती है कि बुरा लगना और बुरा महसूस करना का मतलब ये नहीं होता है कि जो हम करना चाहते हैं वो ना करें। हम बुरा लगते लगते भी अपना काम कर सकते हैं। ओके, सो नॉर्मली हम इमोशनल रीजनिंग इतनी ज्यादा करते हैं कि हमको लगता है मुझे अच्छा नहीं लग रहा तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, मेरा मन नहीं है तो मैं काम नहीं करूंगा, मेरा मन नहीं है तो मैं उससे बात नहीं करूंगा। तो ये जो मन है ना, या ये जो इमोशनल ओवरवेल्म है ना, इसको हम बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, और ये हम भूल जाते हैं कि हम बुरा लगते लगते भी कोई काम कर सकते हैं। अगर हमें बुरा लग रहा है तो भी हम खाना खा सकते हैं। अगर हमारा बिल्कुल मन नहीं है कि हम ये ना करें, लेकिन क्योंकि हमें ये करना है इसलिए हम कर भी सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि हम वही काम करें इसमें हमें बिल्कुल खुशी मिले, या वी हैव टू बी एक्साइटेड डूइंग इट, डजंट मैटर। कई बार हमें पढ़ने का मन नहीं करता, लेकिन हमको पता है कि हमको पढ़ना है, इसलिए हम पढ़ते हैं। भले नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में हम 5 घंटे पढ़े तो कोई बात नहीं, आज हम 4 घंटे पढ़ लेंगे या 3 घंटे पढ़ लेंगे, लेकिन पढ़ेंगे क्योंकि वो हमारे लिए जरूरी है। सो ऑल दिस रीजनिंग कम्स विद अ सेंस ऑफ कंट्रोल। Okay, and that brings us to reasoning, of course, problem solving, resourcefulness, anticipate and plan. तो जैसे मैंने अभी बोला, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि हम इमोशंस में बह के इतना ना बह जाए कि हम प्रॉब्लम को सॉल्व ना कर पाए, तो उतनी रीजनिंग हमारे अंदर हम डेवलप कर सकते हैं। रिसोर्सफुलनेस का सिंपल मतलब ये होता है कि ओके, मैं अगर खुद नहीं जूझ पा रही हूँ, ये काम मैं, क्या मेरे काम के दायरे में है, क्या मैं अपने स्किल्स के अनुसार कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हूँ या कोई चीज कर सकती हूँ। अगर नहीं कर सकती तो ऑब्वियसली आई विल आस्क फॉर हेल्प। सो आस्किंग फॉर हेल्प, आस्किंग फॉर अदर्स टू हेल्प मी, finding other resources to be able to solve a problem is what is resourcefulness is all about. And of course anticipate and plan, जब हम रीजनिंग करते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि क्या
ये 1 2 3 चीजें जो मैंने अपने दिमाग में सोची है कि ये मेरा प्लान हो सकता है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग हो सकता है, क्या ये एक्चुअली में मेरे लिए कारगर है या एक्चुअली में मेरे लिए काम करेगा? So that is also part of reasoning. Of course, then health is very very important. हम क्या खाते हैं, कब सोते हैं, कुछ एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं. Okay, especially during these times when everybody is working from home and everybody is, housebound so much. uh, 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 Accessibility to the internet, to Netflix and to all these online platforms is increased manifold. So जहाँ हमको पता है कि सुबह सुबह हमको 7 बजे उठ के नहा धो के तैयार होके ब्रेकफास्ट करके 9 बजे 9:30 I had to reach college. नाउ वो चीजें थोड़ी चेंज हो गई हैं, लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, नीड चेंज हो गई है. बट द आइडिया ऑफ कोर्स इज टू मेंटेन सर्टेन काइंड ऑफ रूटीन एंड लाइफस्टाइल सो दैट उसका बॉडी पे खराब असर ना हो, बिकॉज योर बॉडी एंड माइंड, आप क्या खाते हैं, दैट इज अ गट हेल्थ, इट्स ऑल इंटररिलेटेड. ओके, देन ऑफ कोर्स टेनासिटी मीन्स परसिस्टेंस, आप कितने जुझारू रूप से काम करते हैं. रियलिस्टिक ऑप्टिमिज्म जिसकी मैं बात कर रही थी, रैशनल पॉजिटिविटी, ये वही है रियलिस्टिक ऑप्टिमिज्म. एंड ऑफ कोर्स बाउंस बैक, आप कितने जल्दी एडवर्सिटी से वापस अपने नॉर्मल उसमें आते हैं. देन कोलैबोरेशन, आपका सपोर्ट नेटवर्क क्या है, सोशल कॉन्टेक्स्ट में आप कैसे लोगों के से मिलते जुलते हैं, बात करते हैं, कम्युनिकेट कैसे करते हैं, कम्युनिकेशन स्टाइल आपका कितना इफेक्टिव है. एंड जब मैं कम्युनिकेशन स्टाइल की बात करती हूँ तो इट्स नॉट जस्ट हम क्या बोल रहे हैं, इट्स ऑल्सो अबाउट हम कैसे बोल रहे हैं और हम दूसरे को किस किस नजरिए से समझते हैं और समझने की कोशिश करते हैं. That is also very important when we talk about communication. And of course, managing our perceptions. Like I said, कि हम दुनिया के बारे में, लोगों के बारे में और अपने बारे में किस तरह के perceptions के साथ जीते हैं और रहते हैं. Okay? Then of course, ये एक modern definition of resilience है that says that we advance and we keep on advancing because we have a vision that we have to fulfill despite all the issues that we have and despite all the problems that might come. हम proactive रहना चाहते हैं और लगातार आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि हमको ये मालूम है कि हमारी लाइफ में एडवर्सिटी आनी जानी है. कितनी आनी है, क्या आनी है, वो हमको नहीं पता, बट ये तो तय है कि लाइफ में एडवर्सिटी आएगी. तो एक हम जिसको हम कहते हैं ना री लुकिंग एट आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स रेजिलियंस एंड टुवर्ड्स कोपिंग. तो जब हमको ये मालूम है और हम इस प्रैक्टिकल नजरिए से आगे बढ़ते हैं कि देखो एडवर्सिटी आनी है, कोई ना कोई चैलेंजेस लाइफ में आते जाते रहेंगे, तो मैं उससे जूझ सकता हूँ या जूझ सकती हूँ. और कभी ऐसा लगे कि मैं कमतर हूँ या मेरे अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं आ रही है कि मैं एडवर्सिटी से जूझ सकूं, तो मैं अपने सोशल सपोर्ट नेटवर्क या प्रोफेशनल सपोर्ट नेटवर्क से मदद लूं कि ओके, दिस इज द एडवर्सिटी एंड आई डोंट नो हाउ टू हैंडल दिस, आई नीड हेल्प. ओके, so the idea of coping is also to be able to seek the kind of support that we want from the people around us. That's very very important when we talk about coping from issues and problems in life, and when we want to develop resilience. Okay, of course resilience is about हमारी inner strength क्या है और किस तरह से cope करते हैं, but it's also about your resourcefulness and use of rational positivity and rational optimism and helping understand that okay, मेरी लिमिट यहाँ तक पहुंच गई है और मैं खुद नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, तो लेट मी आस्क फॉर हेल्प. आस्किंग फॉर हेल्प इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट. Then of course this is the exercise that we are going to do today, because जब हम resilience की बात करते हैं, especially at an age where you guys are, there is so much of conflict that one might be facing. Parents कुछ बोलते हैं, life expectations अपने आप से कुछ हैं, हम अपने बारे में कुछ और सोचते हैं, हमारे दोस्त यार हमारे बारे में क्या सोचते हैं, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हमारे बारे में हमें पता है बड़ा गंदा सोचते हैं और कई बार बुली करते हैं, कई बार हम अपने बारे में बहुत बुरा सोचते हैं और सेल्फ डाउट आता है और नेगेटिव थॉट्स आते हैं, समझ नहीं आता कि क्या करें, एंड वी स्टार्ट क्वेश्चनिंग आवर ओन सेल्फ. दिस फ्रेमवर्क ना हेल्प्स इन दैट सिचुएशन वेरी वेल. इसके बाद हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे so that we're able to understand कि where we are at and how do we go about this. So मैं आपको ये structure ये क्या है ये थोड़ा सा
समझा देती हूँ। ये इस डायग्राम पे बेस्ड हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे, बट दिस डायग्राम इज व्हाट एक्चुअली हेल्प्स अस डेवलप आवर रेजिलियंस, क्योंकि इफ यू सी द एरो पॉइंट्स टुवर्ड्स गोल्स, दैट ये मेरे गोल्स है और ये तो मुझे अचीव करने हैं, एंड देयर आर चैलेंजेस एंड ऑब्स्टिकल्स दैट विल be there in my life no matter what. And these check boxes that you have are kind of our coping mechanisms, our values in life, जो determine करते हैं कि हमारा strength क्या है और हम कितनी जल्दी उससे प्रॉब्लम से उभर पा। तो ऑफ कोर्स हमारी रूट्स क्या है, हमारा वैल्यू सिस्टम, हमारा फेथ, हमारे रोल मॉडल क्या है, हम कितने डिटर्मिन्ड हैं और हम डिटर्मिनेशन कहाँ से ड्रॉ करते हैं, करेज, ग्रैटिट्यूड, कुछ और हम कुछ और वैल्यू सिस्टम जो हम इसमें ऐड करना चाहते हैं, हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस कैसे रहे हैं, हमारा विजन अपने आप को या लाइफ को लेकर के क्या है, हमारे डिजायर्स क्या हैं, और हम कितने फॉरगिविंग हैं। फॉरगिवनेस के बारे में मैं एक छोटी सी चीज कहना चाहती हूँ, दैट नॉर्मली फॉरगिवनेस को ना बड़ा स्पिरिचुअल और बड़ा फिलोसॉफिकल साइड कॉन्सेप्ट बना दिया जाता है, दैट शुड बी फॉरगिविंग एंड भूल जाओ सब कुछ क्या हुआ, नेकी कर दरिया में डाल, कई बार ऐसा बोला जाता है, बट ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि भूल तो हम, अगर हमारे साथ कुछ बुरा हुआ है तो हम भूल कैसे जाएंगे, वो हमारी लाइफ की घटना है, किसी ने बुरा कर दिया, या हमको खुद अगर बहुत गिल्टी फील हो रहा है कि हमने कैसे बुरा कर दिया, तो उसको भूल जाना बड़ा मुश्किल है। तो फॉरगेट करना, भूलना, और माफी देना या फॉरगिव करना तो बहुत अलग अलग चीजें हैं। कैसे अलग है, लेट मी जस्ट क्विकली एक्सप्लेन टू यू, एंड maybe you can ponder on it later in your free time and see if that works for you. Forgetting is of course भूलना, कि हम भूल गए, ठीक है। So this is a brain mechanism कि अरे मेमोरी चली गई किसी किसी इंसिडेंट की और भूल गए। लेकिन जब भूलना और फॉरगिवनेस को हम साथ में जोड़ते हैं, तो फॉरगिवनेस मीन्स, अगर आपने अक्सर देखा होगा कि हम हमेशा पास्ट क्या कोई इंसिडेंट होता है जिसमें हम गिल्टी फील करते हैं या दूसरे से बड़ा नाराज होते हैं, तो हम बार बार क्यों पूछते हैं, मैंने ऐसा किया क्यों, उसने ऐसा किया क्यों, उसको जरा भी बुरा नहीं लगा मेरे से ऐसे बात करने में, या यार मैंने ऐसे कैसे कर दिया, यार मैं इतना बेवकूफ हूँ यार, कैसे हो गया है मुझसे। So we question the why constantly. और हम क्यों ये why पूछते हैं, क्योंकि हमें लगता है यार ये सिचुएशन ना ऐसे हो सकती थी, अगर मैंने उस समय ना ऐसे बोल दिया होता तो उसकी हिम्मत नहीं होती मुझसे ऐसे बात करने की, या वही मैंने उसको टोक दिया होता तो he would not have dared do this to me. Why didn't I do this? So the idea of that why is the hope that यार काश ऐसा हो गया होता, काश ऐसा नहीं तो ऐसा हो जाता। So losing that hope that the past be any different is what forgiveness is. Okay, I will repeat. Losing or letting go of the hope that the past be any different. That is what forgiveness is about. It's not about forgetting. But जब आपकी ये hope खत्म हो जाती है कि जो ऐसा हुआ वो ऐसा नहीं होना चाहिए था, कुछ और तरीके से होना चाहिए था, तो उसकी जो इमोशनल पकड़ है आपके ऊपर, then it doesn't matter. जो हुआ वो हुआ. That is what letting go means. कि जो हुआ वो हुआ, now it doesn't matter, now it doesn't affect my life, so let me just move on and forgive myself, or forgive the other person. Just give me a minute please. Forget the other person, and move on. So that is what forgiveness is. Okay, now as we go along, I want you to do this exercise. I hope all of you have a pen and paper with you, because this is very important. Okay, this is core value assessment कि what do things mean to me, मैं कौन इंसान हूँ। तो this helps us understand that कि मैं क्या इंसान हूँ, मैं कैसे सोचता हूँ, मैं क्या बनना चाहता हूँ, मैं लाइफ में क्या अचीव करना चाहता हूँ। And when I say करना और बनना, I also mean the girls. It's not the boys I'm referring to. I mean everybody. Okay. So let's just understand what values are. सबसे पहले जिसको ना हम value कहते हैं वो होती क्या है। So our values are like GPS navigation system of life. Getting them defined and properly calibrated is one of the most important steps in redirecting your life towards your grandest vision. हम अपने लाइफ के बारे में बहुत कुछ सोचते हैं कि हम ये अचीव करेंगे, वो अचीव करेंगे, उसमें से कुछ चीजें जो हम कर पाते हैं, कुछ चीजें वो नहीं कर पाते हैं, एंड ऑल्सो हमारे लाइफ का विजन एज वी गो अलोंग चेंज होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई वाज 20 years old,
I had a different vision for myself, and now, at this age, I have a different vision for myself, and there are no right or wrong visions. There are no right or wrong goals, because आपके पर्सनल होते हैं, एंड इसका वैल्यू जजमेंट नहीं लगाया जा सकता है. मैंने से वैल्यू जजमेंट, इट मींस नेगेटिव लेबल कि ये सही है, गलत है, ये ऐसा है, ये वैसा है. दीज आर जस्ट आवर वैल्यूज एंड दीज आर वेरी पर्सनल टू अस. तो जो हम सोचते हैं, जो हम करना चाहते हैं, जो हम महसूस करते हैं, दिस इज अबाउट दैट. Okay, so the below series of questions will help you evaluate and refine what is truly important to you and what matters most in life. Answer each question thoughtfully, and then I will help you select the top few. Okay, इसमें half a dozen values लिखा है, but I'll help you select top few values of your life. Now what I'm going to do is I'm going to split the screen so that आपके पास एक value chart भी हो कि value का actually मतलब क्या होता है. Okay, so just give me a second. I hope you're able to see the questions also. Okay, so just give me a second. Are you able to see these core values? No, we are able to see the questions. You're not Core able to value see? assessment. Yes, You're ma'am. able We to are see able the to see question? memory jogger of values. हाँ, are you able to see memory Yes, jogger ma'am. of Memory values? joggers. I'm not able to see. Okay, I'll still. Can you please stop presenting and present it again? Some students are also facing issue of not seeing the presentation. Okay. But are you able to see the memory jogger right now? No. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. All right. Okay. अभी तो slide चली गई because मैंने minimize कर दिया ना, so the slide has gone. Just give me a second. Are you able to see now? yes, ma'am. Yeah. Yes. Yeah. So this is a memory jogger of values. Okay. So if I'll give you 2 minutes to quickly, go through this. What I can also do simultaneously is open another window so that you have the questions also and you can make use of both. So just give me a second, okay? I'm going to navigate my screen. Okay, so you have this, right? And one sec, just guys, one sec, bear with me, please. So do you have the questions with you also now on the screen? Yes, ma'am. Yeah. And values as well? Yes. Yeah. So I want you to make note of these values. इसको मैं थोड़ा सा छोटा करती हूँ. Just give me a second. I will reduce the window more. Yeah, is this better? Yeah, this is better. This is better. Okay, just give me a second. Yeah. I think now this is cool. No. Gmail is popping up. Sorry. Okay.
Okay. So the first question is, so you have the memory jogger here of values here. There are loads of values given here, okay? And then the first question is, who is the person I respect most in my life? And what are their core values? So I want you, and this is a very quick exercise, okay? आप लाइफ में किससे ऐसे इंसान को जिसे सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, आपको क्या लगता है उसकी कुछ कोर वैल्यूज क्या होंगी? क्विकली मेक अ नोट ऑफ दैट इन अ पीस ऑफ पेपर. Okay? Who is the person I respect most in my life? And उस इंसान के core values क्या हैं? लॉयल है, रिस्पेक्टफुल है, फन है, जेनरस है, जो भी आपको लगता है. Then who is my best friend? And what are his or her top 3 qualities? आपको क्या लगता है आपके फ्रेंड की क्या है? So this memory jogger, jogger of values is just for reference, okay? You don't have to choose words from here. आपको जो लगता है आप वो लिख सकते हो, okay? Who is my best friend and what are his or her top 3 values, top 3 qualities? If I could have more of any one quality instantly, मतलब आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज होंगी और कुछ ऐसी क्वालिटी जो बहुत ज्यादा चाहते हो, वो ऐसी कौन सी एक क्वालिटी है? Then of course, what are the 3 things I hate? It could be anything in the world. It could be chocolate ice cream. I don't like chocolate ice cream, okay? So it could be anything. What 3 things I hate the most? Anything it could be. Which 3 people in the world do I dislike the most? Just write their names, 3 people that I dislike the most in the world and why. Just write one thing उनके बारे में जो आपको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती. देन कुछ ऐसी एक या 2 क्वालिटीज अपने बारे में बताइए जिसके बारे में आपको सबसे ज्यादा कॉम्प्लीमेंट मिलता हो, कि लोग कहते हो वाह यार तुम्हारे अंदर ये बात बहुत बढ़िया है. और नेक्स्ट क्वेश्चन है that let's suppose you decide to have children. Okay, I want you to assume that you decide to have children later in life sometime and आपके खुद की कौन सी ऐसी 3 वैल्यूज हैं या 3 ऐसे ट्रेट्स हैं सबसे इंपॉर्टेंट तो आपको लगता है ये मेरे अंदर से मेरे बच्चों में तो जरूर ट्रांसमिट होने चाहिए या पास ऑन होने चाहिए? ओके, दैट ये मेरे ट्रेट्स ये मेरे बच्चों में जरूर पास ऑन होने चाहिए. 3 सबसे बढ़िया. ये थोड़ा सा मुझसे गलत एडिट हो गया है ये तो माफी, बट आई विल मैं आपसे पूछूंगी सवाल इफ यू आर अनएबल टू रीड इट. ओके, so we're leaving the first just give me a second. The next question is, if I had enough money to retire tomorrow,
what values would I continue to hold? अगर मेरे पास इतना पैसा हो जाए कि मुझे लाइफ में कुछ करने के काम करने की कुछ करने की जरूरत ही नहीं है और मैं बस रिटायर हो जाऊं, तो ऐसी कौन सी 3 टॉप वैल्यू हैं जो आप अपने पास होल्ड ऑन करके रखना चाहोगे? आपको लगेगा कि इससे पैसा है और ये 3 चीजें वैल्यूज है मेरी लाइफ में, तो मेरी लाइफ सेट है. और मुझे कोई एक ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू हैव टू राइट वन वैल्यू दैट यू सी कि अगले 100 साल तक भी ये वैलिड है एंड दिस इज नॉट गोइंग एनीवेयर फ्रॉम द वर्ल्ड. तो आपको लगता है कि इसके बिना तो दुनिया चल ही नहीं सकती, इस ट्रेट, इस एटीट्यूड या इस वैल्यू या इस चीज के बगैर. नाउ व्हाट आई वांट यू टू राइट, आपका कोई भी आइडियल मैन या कोई भी आइडियल वुमन हो, उसके अंदर टॉप 3 क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? इसमें डजन लिखा है बट आई जस्ट वांट यू टू राइट 3 क्वालिटीज. Okay, now what I want you to do is आपने जितनी भी क्वालिटीज अभी तक लिखी हैं, ओके, उनमें से टॉप 6 क्वालिटीज चूज करिए. आपने बहुत सारी लिखी होंगी. आई वांट यू टू जस्ट पिक टॉप 6 that mean the most to you. So just pick top 6 values. Okay. And now reduce these top 6 values to the top 3 most important values. Okay, are you guys done? All right. Now, who can tell me what you learned from this exercise? I just need one person to tell me what you learned from this exercise. Let me just escape so that I can see who's answering. Just give me a sec. Where is the chat box? Okay. Yes, guys? Okay, repetition of positive traits. What else?
Yeah, I get it was repetition. Yeah. What else? Yes, exactly. It is self-introspection. It is about understanding your own self better. Where do I stand? What life means for me? Yes, analysis. Yes, analyzing your own self. Because what happens is, a lot of the times we mostly think of ourselves uh, on the perception that we want others. How we want others to perceive us. Uh, uh, and of course the negative or the positive labels that others put on us, okay, but this is more like what I mean to myself, what values are important to me, how I see my life. Yeah, yes, this exercise would make you like where you stand, what does it mean to you. Yes, focus on optimism. Okay, now these top 3 values, जब आप लाइफ में कुछ करते हैं तो कोशिश होती है कि ये जो मेरी वैल्यूज हों ये पूरी हों। जब लाइफ में कुछ भी हम आगे बढ़ते हैं, कुछ किसी तरह के एंगेजमेंट्स करते हैं, चाहे रिलेशनशिप्स हो, चाहे काम हो, चाहे कुछ हो, तो हम कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं इन वैल्यूज में से, इन टॉप वैल्यूज में से कोई वैल्यू है जो अचीव हो रही है हमारे उस काम के द्वारा, हमारे इंटरेक्शन के द्वारा, हमारे बीट प्रोफेशनल वर्क और बीट एनीथिंग एल्स, एनी काइंड ऑफ अदर एंगेजमेंट that we are doing. And this is what resilience means, that when you are focused, like I'll put this slide back on, that when we are focused on what life means to me and what values are dear to me and what I represent, चाहे लाइफ में कोई भी सेटबैक आता है, हम कोशिश करते हैं कि हम बाउंस बैक करें, क्योंकि ये जो टॉप 3 चीजें हैं लाइफ में, ये हम करना चाहते हैं। जब तक अंदर से ये चीजें पूरी नहीं होती है तब तक हमारे लाइफ में जद्दोजहद चलती रहती है एंड हमको बुरा लगता रहता है। तो if we stick to these values, and of course these values also change over a period of time, because we as people change over a period of time. You're not how you were when you were 15 years old or when you were 10 years. Obviously you've also changed as a person. We all do. We all grow and evolve. So what matters to us right now may not matter to us 5 years hence. But in the current state, in the current frame in our head, these values are very dear to me and this is what I hold very dear to my life. So जब हम कोपिंग की बात करते हैं, हम resilience की बात करते हैं, हम लोगों से जूझने की बात करते हैं, हम लाइफ में आगे बढ़ने की बात करते हैं, तो अगर हम इन 6 से 3 वैल्यू को मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़ेंगे, देन जो हमारा सेटबैक्स हैं वो उतने बुरे नहीं होंगे, हम कोप कर पाएंगे। जब हम लोगों से जूझेंगे, चाहे वो किसी तरीके का भी पीयर प्रेशर हो, किसी तरह का भी और चैलेंज हो, we will be able to move ahead, and we will be able to gain strength, relate to people better, and most importantly we will be able to relate better with ourselves, because obviously that is of primary importance कि हम अपने आप से कैसे जूझते हैं एंड अपने आप से किस तरह से हम रिलेट करते हैं। ओके, is everything clear? Do you have questions? Do you think you will be able to identify with the exercise that we did? What I want you to do is, if you have these questions written, I can share the PDF with Dr. Yadav, and you all can get, or with Rishabh. I want you to, in your free time, do this exercise again एंड फिगर दिस आउट फॉर योरसेल्फ। ये बहुत इजी है, इसमें कुछ नहीं करना है। 3 छोटे छोटे A4 साइज के कागज हैं, प्रिंट लेके खुद कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी की कराया आपको, आप वैसे कर सकते हैं। सो यू कैन डू दिस एंड रीअसेस where you are at. This is a great exercise to for you to help yourself understand yourself better. Okay, so the floor is open now. If you have any questions, please ask me.
Anyone? Yes. Any questions? Please guys ask me questions, otherwise I'll feel कि ये सब सर के ऊपर चला गया and you guys didn't understand anything. Questions are good. Is this form for participants aged 18 to 25 years? Vasu, the Google form? Yes, but if you are still in a university and you're studying and अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहें तो you still can. ऐसा कोई rigid rule नहीं है कि अगर आप 25 साल के से ऊपर है तो आप नहीं भर सकते हैं. The idea is that you have to be a college or university student. How to cope with anxiety? Okay, so the thing is that सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि anxiety और anxiousness में क्या फर्क है. So if you are not a student, then you will not fill the form. If you're a student, then only you need to fill the form. So I was talking about the difference between anxiety and anxiousness. So anxiousness एक general nervousness होती है जो बहुत normal होता है जब हमारा कुछ फ्यूचर के बारे में सोचते हैं या कुछ नया एक्सपीरियंस होता है तो butterflies in the stomach and certain nervousness. अगर आप कुछ प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो या किसी नए टास्क के बारे में सोच रहे हो तो थोड़ा बहुत एंग्शियस होना, थोड़ा बहुत नर्वस होना तो लाजमी है. और जैसे मान लीजिए करंट सिचुएशन है तो सम अमाउंट ऑफ एंजाइटी इज आल्सो ओके बिकॉज फ्यूचर अनसर्टन है, चीजें पता नहीं है. बट एंजाइटी व्हाट एक्चुअली मीन्स इज एक्सेसिव वरी. अगर आपके दिमाग में एक लूप ऑफ थॉट चले जा रहा है, आप उससे जूझ नहीं पा रहे हो. और जनरली ये लूप ऑफ थॉट ऐसा होता है कि ये व्हाट इफ थॉट होता है. व्हाट इफ ये हो जाए, अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो. एंड ये कॉन्स्टेंटली दिमाग में चलता है, आप उससे जूझ नहीं पाते हो, आप उससे निकल नहीं पाते हो. तो दैट इज व्हाट एंजाइटी है. इसके साथ साथ अगर आपको खाने पीने में दिक्कत हो रही है, नींद में दिक्कत हो रही है, आप Jyoti, I'm going to answer your question, okay? Don't worry. But let me just complete my stream of thought and I'll answer your question. Yeah. So, अगर आपको लगता है कि आप नेगेटिव लूप ऑफ थॉट में हो, या एंग्शियस लूप ऑफ थॉट में हो और कॉन्स्टेंटली व्हाट इफ अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो, उसके थॉट्स आ रहे हैं, दैट इज एंग्जाइटी. और प्लीज रिमेंबर, एंग्जाइटी और एंग्शियसनेस इज ऑलवेज अबाउट फ्यूचर, कि फ्यूचर में क्या हो जाएगा, फ्यूचर में कुछ गड़बड़ ना हो जाए. तो एंग्जाइटी का मतलब यही होता है कि जब हम ऐसा एंटिसिपेट करते हैं कि कुछ गलत हो जाएगा या कुछ गड़बड़ हो जाएगा. सो नॉर्मल नर्वसनेस और नॉर्मल एंग्शियसनेस is fine because you're able to cope with it, and that also enables you to perform better. कि आप nervous हो कि अरे यार मैंने ना इस speech में गलती ना कर दूं तो I'm going to rehearse it more. या जब तक आप speech दे नहीं देते हो तब तक आपको थोड़ा सा nervousness होता है, पेट में butterflies होती है, that's absolutely fine. But anxiety is more than that. It is constant. It is affected also in the mind in terms of the loops of thought that I told you. It also affects your body. बहुत लोगों को लूज मोशन हो जाता है, आपका भूख नहीं लगती है, नींद चली जाती है. ये सारी चीजें अगर हो रही हैं तो that means that you have anxiety, and I would request you to please seek professional help. एक काउंसलर से बात करिए और काउंसलर से एक सेशन, 2 सेशन तभी लेना है आप लीजिए, so that you're able to manage this. Okay. Coming back to your question, Jyoti, the survey is with a certain intention, has been kept with a certain intention in mind. There are multiple options that are given. अगर आप सर्वे करेंगी तो आपको ये दिखेगा कि बहुत सारे ऑप्शंस है. कोई जरूरी नहीं है कि आपको प्रॉब्लम हो लाइफ में तभी आप ये सर्वे करें. तो yes, no, maybe, agree, strongly disagree, जिस भी कैटेगरी में मल्टीपल चॉइस है, ओके, आप वो करिए and fill the form. Okay. Somebody asked me about hotel industry के बाद में career क्या करेंगे. तो the thing is, I'm not a career counselor. I can help you find a good career counselor. I know quite a few. Okay. So I can help you with that. But I'm not a career counselor. Sorry. So I really don't know कि hotel industry के course के बाद आप क्या करो. I'm so sorry. Yeah. Somebody asked about
the vision or how to set goals or something like that. I'm sorry, I missed that. The chat quickly went away, so I couldn't really see it. Just give me a second. I will go through your thing. Again, how to cope with uncertainty or fear of future goals. Okay, now fear of future is a different thing, and goal setting is a different thing. Okay, uncertainty है, इस वजह से थोड़ा fear होता है future के बारे में. As I again said that थोड़ा future के बारे में fear होना लाजमी है, because you know you're at a juncture where you feel कि आगे कैसे होगा, नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, एग्जाम कैसे होगा, आगे और ट्रेनिंग क्या ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं. But that also helps you set goals for yourself, that also helps you make certain decisions to be able to achieve those goals. Now if you are unable to do that, then you certainly need a sit down with a therapist or a counselor or maybe a professor who can guide you in decision making and help you achieve those goals. Okay, ये ये स्पेसिफिक गोल सेटिंग होती है जो आप एक लाइफ कोच या एक थेरेपिस्ट या अपने प्रोफेसर या किसी सीनियर के साथ बैठ के कर सकते हैं, where you actually list down everything that you have in mind and then keep striking that off in terms of that pros and cons. Okay? ये प्रोज एंड कॉन्स ऑब्वियसली आपके खुद के हैं, किसी और के नहीं है, आपके लाइफ के अनुसार, आपके वैल्यू सिस्टम के अनुसार है. सो कीप चेकिंग देम ऑफ, एंड जो बचते हैं then those become your immediate goals, and आप उसको कैसे अचीव करोगे, then that step by step also you can take guidance. You can sit with somebody, with a friend probably, with a senior, with a mentor, with a professor, whosoever, and then decide कि इस goal के लिए हम ये steps ले सकते हैं. Okay, what are your thought about hotelier? I know a couple of hoteliers. But I have no Snigdha, you thoughts can about skip them. this question. We don't have to take this question because I know. I can see the person in front of me. His videos is on. I know why he's asking this question. it's okay. It's okay. Let's skip him. How do I increase myself to consistency? I don't. Okay, do you want to be more consistent in the work that you are doing? Then you need to follow a routine or a set pattern that you can identify with. For example, आप किसी कोई एक project या कोई एक goal दिमाग में रख के चल रहे हैं, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप उसको उसके लिए consistent नहीं है, काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए दिन में कुछ टाइम निकालिए कि इतने बजे से इतने बजे तक दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैं ये करूंगा या ये करूंगी, ये काम मुझे करना है. कई बार ऐसे होता है कि डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, सोशल मीडिया है, फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, बाकी सारी चीजें, थॉट डिस्ट्रैक्शंस है, वो डिस्ट्रैक्शंस आने दीजिए. द आइडिया इज कि ऐसा नहीं है कि हमारी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस नहीं होंगे, डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, आप डिस्ट्रैक्ट होइए, बट ब्रिंग बैक योर फोकस टू व्हाट यू आर डूइंग. ओके, एंड डू दिस एवरी डे. आप अपने लिए वो पहले हफ्ते भर का प्लान बनाइए, देन इंक्रीज दैट टू अनदर वीक, देन इंक्रीज दैट टू 15 days. ओके, मेक शॉर्ट ड्यूरेशन के ये गोल्स बनाइए, 1 day, then 7 days, then 15 days, then a month, and then you realize that you are able to develop consistency, because it's like developing a new habit. Okay, yeah. So if you thank you. Okay, how to be very less short tempered in hard situation. Okay, if we understand what does short temper mean, short temper means गुस्सा आना, एंड अगर बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन होती है तो हमको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है. ओके, गुस्सा प्लीज अंडरस्टैंड क्यों आता है. गुस्से का मतलब ये है कि कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी सिचुएशन, व्हेन आई से सिचुएशन, अगेन आई मीन इट कुड बी अ पर्सन, इट कुड बी एन आर्गुमेंट विद अ पर्सन, इट कुड बी अ लाइफ प्रॉब्लम जिससे हमारा फ्रस्ट्रेशन बढ़ गया है, इट कुड बी अ पास्ट मेमोरी, पास्ट अकरेंस, इट कुड बी फ्यूचर, इट कुड बी एनीथिंग. ओके, जब हमें ऐसे लगता है हम आउट ऑफ कंट्रोल हैं और चीजें हमारे मुताबिक नहीं हो रही हैं, हमको तब गुस्सा आता है, क्योंकि ऑब्वियसली हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, सडनली हम इरिटेट हो जाते हैं कि यार ये सुन क्यों नहीं रहा है बात, ऐसा हो क्यों नहीं रहा है, व्हाई द हेल इज दिस पर्सन नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. So the idea is to constantly remind yourself that things will not go as per my wish.
Okay, I know sometimes it's very difficult to follow through and कि ये तो मैम कैसी बातें कर रही हैं, हम कोई सन्यासी थोड़ी हैं, हम कोई योगी थोड़ी है कि हमको किसी चीज का फर्क ना पड़े. So the idea is कि फर्क पड़ता है जब चीजें हमारे जैसे नहीं होती है, हम जैसा चाहते हैं वैसे नहीं होती है, तो बिल्कुल हमें फर्क पड़ता है. इसका मतलब ये नहीं कि फर्क ना पड़े, बट द आइडिया इज फर्क पड़ रहा है क्योंकि हम चाहते हैं कि चीजें हमारे मुताबिक हो बट नहीं हो रही हैं. और ये गुस्सा इज नॉट गोना हेल्प दोस थिंग्स हैपन फॉर मी. So I can still be disappointed, I can still continue to feel bad कि यार these things are not happening my way. बट कोई जरूरी नहीं कि उसके लिए हम गुस्सा हों. हम दूसरी चीज हो सकते हैं विच इज डिसअपॉइंटेड, हम दूसरी चीज हो सकते हैं विच इज अनॉइड. अनॉइड इज अ स्मॉलर फॉर्म ऑफ एंगर दैट हम कुछ बुरा नहीं कर रहे, हम चीख चिल्ला नहीं रहे, हमारा पारा नहीं बढ़ रहा, हमारा ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ रहा, हम दांत नहीं पीस रहे, हम उस बंदे से गंदी तरह से बात नहीं कर रहे, या हमारे दिमाग में गंदे थॉट्स नहीं आ रहे, हमको अभी भी बुरा लग रहा है कि चीजें हमारे मुताबिक नहीं है, बट हम गुस्सा नहीं हो रहे. सो यू शुड कॉन्स्टेंटली रिमाइंड योरसेल्फ दैट थिंग्स विल नॉट गो माय वे. They may not. Okay, how to cope with inferiority complex. Okay, now see, these complexes and attitudes develop over a period of time due to certain belief systems, जो हमारे experiences के through हम सीखते हैं. तो this is a long drawn process. थोड़ा ये मैं explain यहाँ पे उतने अच्छे से नहीं कर पाऊंगी ना, आपको बता पाऊंगी कि how to cope और how to overcome with inferiority complex. Inferiority complex का basic मतलब यही होता है कि हम अपने आप को कमतर समझते हैं, हम अपने आप को दूसरों के मुताबिक, लाइफ के मुताबिक या अपनी expectations के मुताबिक से कम समझते हैं. तो you have to learn to grow out of it and how to not draw certain comparisons. We can always draw comparisons, but not comparisons to negatively label and judge ourselves. Okay, जब हम अपने आप को नेगेटिव लेबल और अपने आप को नेगेटिव जजमेंट देते हैं दूसरी चीजों से कंपेयर करके या दूसरे लोगों से कंपेयर करके, या उसके पास कुछ है जो मेरे पास नहीं है, और ये धारणा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बनती है. इट इज नॉट जस्ट वन इंस्टेंस. ओके, तो हमको री इवेल्युएट करना पड़ता है कि क्या ये जो धारणा हम अपने अंदर लेकर के आए हैं, ये जो बिलीफ सिस्टम या एटीट्यूड हमने अपने बारे में बनाया है, उसको हम उससे कैसे बाहर निकले. Maybe we can have another session later where we talk about all of these things and use actual skill training to help you get out of it. So it's a process and it takes a little time. Okay. So it's 1:43. I've extended this by some 13 minutes. We can take one more question because I can see a question. How can we deal with overthinking? Okay, yes, I miss seeing this question. Okay. ओवर थिंकिंग क्या होता है? बेसिकली हम किसी चीज के बारे में या काफी सारी चीजों के बारे में रिपीटली सोचते रहते हैं. ओके, नाउ द आइडिया इज दैट हमको again this is a very long it's a process how to stop overthinking. Okay, there are skills and there are thought reframing techniques जो हम यूज करते हैं to cut these thoughts and to concentrate on only those thoughts that are meaningful and that are solving some issue in my life or that mean something to me. ओके, दूसरी चीज है, कई बार हम ओवर थिंकिंग क्यों कर रहे हैं उस पे भी हमको ध्यान देना चाहिए कि ये ओवर थिंकिंग हो क्यों रही है. इट सीम्स लाइक एन ऑटोमेटिक प्रोसेस, सो वी नीड टू स्टॉप एवरी टाइम वी फाइंड आवरसेल्व्स थिंकिंग कि ओ देखो ये सेम लूप ऑफ थॉट बार बार आ रहा है, कट योरसेल्फ देयर. ये मैं एक छोटा सा टेक्निक बता रही हूँ, उसमें बहुत सारे टेक्निक्स हैं. जस्ट स्टॉप योरसेल्फ देयर, से okay, I'm overthinking, let me distract myself and focus on something else. Okay, focus on something productive. So every time you find yourself in that loop of thought कि मैं overthink कर रहा हूँ इस चीज के बारे में, ये देखो chain of thought चला जा रहा है, कैसे होगा, क्या होगा, अब आगे ऐसा क्या होगा, ऐसा है, इतना पैसा, इतना ये गाड़ी, ये स्कूटर, ये all of that. It's like a chain of thought that goes on. As soon as you realize that, just cut yourself there and just consciously tell yourself. If you have to talk to yourself and say, okay, Snigdha, you're overthinking, please stop. Then say that, Snigdha, you're overthinking, please stop. Every time you consciously you have to make that effort, because it's like a habit change. तो आपको बोलना पड़ेगा कि Snigdha, stop it, you're overthinking. Why don't you engage in something else? Okay, and do something at that point. Okay.
Okay. So, Snigdha, I think so. ऐसे तो questions आते रहेंगे, but we Yes. have here because of the time limit that Yes. we have in our hands. Sure. So we are really, really thankful to you for giving such a good session and good insight as to how we should cope up. There are different mechanisms that are there for coping up different types of challenges and Yes. that we face in our day-to-day life. So I hope the participants have taken, there are certain takeaways that they have, they will realize, they will think over it, and whatever suits them, they will be pondering over it and adopt it. Otherwise, they can go in for some help, they can go to their parents, friends. We should always take help of our friends Yes. and parents, definitely. And if it is Sure. something serious, nothing is in the hands of parents and friends, then we can always go in for some professional help. क्योंकि अगर पेट दर्द होता है, बुखार होता है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं. तो हम फर्दर अगर प्रॉब्लम है, चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं और आपको बहुत इश्यूज आ रहे हैं, then definitely we should go ahead with some professional help as well. So at this note, I think so. We are very grateful and happy that you have taken this session. Thank you so much. But I'm Thank you. sorry to cut you short, but I want everybody to please fill that Google form. It's really important because we're building this program that might eventually benefit you also if your college adopts it. But please fill the Google form. It will just take three minutes of your time. Okay, participants, please fill the form because it is very important. So at this note, thank you, everybody. Thank you for having me. And bye-bye. All the best to everybody. Take care of yourself. And as Dr. Yadav said, seek help if you need to from all the resources that you have, whether it's professional, peers, friends, family, relatives, whosoever you want, if you're unable to cope with anything by yourself. Okay? See you. Bye-bye. Okay, thank you.